اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور چھوٹا عمل عظیم ثواب سیگمنٹ میں آج میں آپ کو جو ہے وہ تھوڑی سی ایسی چیزیں بتانا چاہوں گی کہ جس سے جو ہے ذہن جو کہتے ہیں نا تیز ہونے کے لیے اور کہ وہ کوئی یادداشت جو ہے آپ کی اچھی ہو جائے، اور جیسے خاص طور پہ ایک طالب علم ہوتا ہے یا پڑھنے والے ہوتے ہیں، اور صرف بچے ہی نہیں، آج کل طالب علم بلکہ بڑوں کے لیے بھی جیسے ایڈلٹ سینٹرز وغیرہ ہوتے ہیں، بڑے بھی پڑھنا چاہتے ہیں، بڑے اور بھی مزید اپنی ڈگریاں لینا چاہتے ہیں، تو ہم اکثر جیسے گھریلو چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ بادام ہے، چاروں مغز کو استعمال کریں گے تو ہمارے ذہن جو ہے یقین اس میں فرق پڑتا ہے، غذا سے بھی ذہن تیز ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پروردگار کی طرف سے عطا کی ہوئی ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن اتنے تیز اور اچھے ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے کے مقابلے میں ذہن اس کو بھی پروردگار نے دیا ہوتا ہے کہ وہ ذرا جلدی اس چیز کو پک اپ کر لیتا ہے یا سمجھ لیتا ہے اور جلدی اسے یاد رہتا ہے، اور ہمیشہ اس کی یادداشت جو ہے اچھی ہوتی ہے اس کے بارے میں بنسبت کہ دوسرے اگر کوئی ہے طالب علم ہے کہ وہ اگر اس چیز کو اس نے تھوڑا یہ ہے کہ بہت دیر میں ٹائم لے کے اس چیز کو یاد کیا، جبکہ ایک ذہین جو ہے بچے نے بہت جلدی یاد کر لیا، تو یہ چیزیں اکثر ہوتی ہیں، بچوں میں بھی ہو جاتی ہیں کہ کوئی تو بہت ذہین ہوتا ہے کہ جلدی یاد کر لیتا ہے، اس کی یادداشت اچھی ہوتی ہے، اور کسی کی کمزور ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں ہم یقیناً ہمارے گھر میں جو ہے یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں کہ جس سے ذہن جو ہے تیز ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بھی ایسی چیزیں ہیں، اگر ہم اس پہ عمل کریں اور وہ ہم اسے استعمال میں رکھیں تو یقیناً جو ہمارا حافظہ ہے وہ بہت تیز بھی ہو جاتا ہے، تو ہم ان چیزوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ ماؤں کو چاہیے یا گھر کے جو فرد ہیں جو بیوی ہیں جن کے ہسبینڈ پڑھتے ہیں یا خود کوئی جو ہے کچھ اسٹڈی کر رہی ہیں تو اپنے لیے بھی استعمال کریں اور پڑھیں، اور مطلب ایک ایسا چیز ہے کہ وہ ایک زیادہ ٹائم نہیں لیتے، کم ٹائم میں آپ اس کو استعمال کر کے اور ایک حافظے کو جو ہے اپنے تیز اور اچھا بنا سکتی ہیں، بنسبت کہ اس کو ٹائم لیں اور زیادہ ٹائم میں اس کو یاد کریں، اگر ہم نے ایک دو دفعہ نظر دوڑا لی تو یقیناً وہ چیز ہمیں یاد ہو گئی، تو اس کے لیے یہ چیزیں ہیں کہ اگر سب سے پہلے جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 113 آیت نمبر ہے 113 آیت کو آپ نے 121 مرتبہ 121 ٹائمز جو ہے پانی پہ پڑھ کے روزانہ پلائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ عالم الفاضل ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں سورۃ النساء کی جو آیت ہے وہ 113 آیت نمبر ہے 113 اور اس کو 121 مرتبہ، آیت نمبر 113 اور اس کو 121 ٹائمز جو ہے آپ نے پڑھ کر پانی پہ دم کر اور وہ جو ہے آپ نے پینا ہے، پلانا ہے، جس کے لیے بھی آپ نے استعمال کرنا اسے استعمال کیجئے تو یقیناً حافظہ جو ہے وہ تیز ہو جائے گا۔ تو ہم یہ چیزیں تو استعمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ اگر ہم یہ بھی استعمال میں رکھیں تو کہتے ہیں نا ایک سونے پہ سہاگا، تو آپ یہ چیزوں کے ساتھ ساتھ جب یقیناً یہ ایک برکت والی چیزیں ہیں، قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ ہر چیز کا جو ہے وہ علاج موجود ہے، اور تو ہم کیوں نہ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں جب ہم اس قوم میں پروردگار نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس مذہب میں پیدا کیا ہے ہمیں، تو ہمیں یقیناً ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے عقیدے کے ساتھ، تو ہم اسی چیزوں کو اس طرح سے استعمال کرتے رہیں اور اپنے جو ہمارے ہیں اور یقیناً یادداشت تو یہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ آخری عمر تک بھی اس کی یادداشت جو ہے وہ اچھی رہے اور بہترین رہے، اور اکثر ہم نے دیکھا بھی ہوگا کہ کچھ بزرگ ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ آخری عمر میں آ جاتے ہیں، کافی ایج ہو جاتی ہے ان کی 80 اور 90 سال بعد تو ہوتا ہے 70 سال میں، تو ان کی یادداشت کم ہو جاتی ہے، تو وہ جو اکثر کسی سے ملتے ہیں تو وہ ان کو بھول جاتے ہیں اور پھر دوبارہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کون ہیں، پھر وہ اگر کوئی بتا رہا ہے تو پھر وہ بھول جاتے ہیں، تو ایک مطلب ایک جو دوسرا انسان ہے اس کے لیے بھی تھوڑا سا ایک سے بار بار بتانا اندرونی طور پہ وہ تھوڑا سا فیل کرتا ہے کہ بار بار بتا رہے ہیں، تو پر یہ تو خیر پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، عمر کے ساتھ ہر چیز میں جو ہے وہ ایک چیز کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن ہمیں اپنی دعاؤں میں اس چیز کو بھی جو ہے ضرور شامل رکھنا چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں ہماری یادداشت کو بہترین رکھے تاکہ ہم آخری مرتے تک ہماری یادداشت بہترین ہو اور ہم تجھے پہچانتے ہوئے اور تمام چیزوں کو جو ہے پہچانتے ہوئے اس دنیا سے جائیں، اور اس کے ساتھ تو ظاہر ہے ہم ان چیزوں کا جب تک ہم سہارا نہیں لیں گے تو ہمیں ایسے زندگی تو آ جائے گی، گزر جائے گی، لیکن جب ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں گے تو یقیناً ہم ایک کہیں گے کہ ایک بہترین تھا جس نے قرآن مجید سے فائدہ اٹھا کے اس دنیا سے گیا، تو ہماری اس یادداشت میں بھی بہتری اور بہترین ہو جائے گی ہماری یادداشت، تو یہ یادداشت کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ فتح کو لکھ کر آب زمزم سے دھوئے اور وہ پانی پی لے تو لوگوں کو لوگ جو ہے اس کی بات مانیں گے اور جو چیز سنے گا اسے یاد ہو جائے گی، تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ
सूरत फ़तह के बारे में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर इसे हम लिखकर आब ज़मज़म से इसे धोकर पिएं तो जो है हमारे लोगों में हमारी बात मानी जाएगी और उसके साथ साथ जो भी बात सुनेगा और वो याद हो जाएगी। तो ये अक्सर हमने देखा भी है, कुछ लोग कोई बात सुनते हैं या कोई नाम ऐसा होता है सुन लेते हैं कभी या पहचान लें तो कभी भी भूलते नहीं हैं। कि आम इंसान तो हम भूल जाते हैं कि अच्छा उसका क्या नाम था, कुछ अरसे बाद हम उसका नाम भी भूल जाते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर 10 साल भी उसकी चेहरा देखेंगे तो उसको नाम से पुकारेंगे, तो ये एक बेहतरीन याददाश्त होती है। तो लिहाजा यही बात यहाँ पर आ रही है कि जो बात सुनेगा वो कभी भूलेगा नहीं, याद रहेगी। तो ये क्या है, सूरत फ़तह है, इसे हमने लिखकर आब ज़मज़म से धोकर पिएंगे तो यकीनन हमारी याददाश्त ऐसी हो जाएंगी। जो चाहते हैं, जो लोग इसके ख्वाहिशमंद है कि हमारी याददाश्त अच्छी रहे, हमारे बच्चों की रहे, हमारे घर में जो अफराद हैं उनकी याददाश्त अच्छी रहे, तो उसके लिए ये में सारी चीज़ें। और मज़ीद फरमाते हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बाकायदा सूरत शम्स की तलावत करेगा, और यहाँ पर बात आ गई है जो है तलावत की बात आ रही है। सूरत शम्स जो है बाकायदगी से यानी रोज़ाना इसके अगर हम तलावत करते रहेंगे तो जो है वो हमारा हाफ़ज़ा जो है वो परवरदिगार है जो बेहतरीन कर देगा और बेहतरीन हाफ़ज़े में जो हमारा शुमार होने लगेगा, जो कि जिसे हम आमतौर पे कहते हैं बहुत ज़हीन है और एक दफ़ा सुनता है तो याद कर लेता है। इस तरह से हम खुद भी फिर हैरान होते हैं कि देखो उसका हाफ़ज़ा कितना अच्छा है कि हमें इस चीज़ को इतनी दफ़ा याद करना पड़ता है और उसने एक दफ़ा सुना उसे याद हो गया। तो अगर चाहते हैं कि तो अगर आप कुछ पीने का या पढ़ने का पानी पे नहीं चाहते तो सूरत शम्स को जो भी है, या आपकी औलाद है या आपके शौहर हैं या खुद हैं, तो सूरत शम्स को जो बाकायदगी से इस नियत से आप अगर तलावत करेंगे तो वो भी आपका हाफ़ज़ा जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा और बेहतरीन हो जाएगा। और एक और जगह आयतुल्लाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आयतुल कुर्सी के बारे में है कि पूरी यानी खालिदून तक हम फ़िया खालिदून तक अगर इसे रोज़ाना 21 मरतबा 21 टाइम्स जो है हम इसको पढ़ते रहेंगे, यानी 21 मरतबा रोज़ाना अगर हम पढ़ते रहेंगे तो यकीनन इसमें भी हमारा जो हाफ़ज़ा है वो बेहतरीन हो जाएगा। और बेहतरीन मतलब इतना ज़्यादा फ़ायदा आपको इसका हाफ़ज़े से होगा, आपको ख़ुद अंदाज़ा होने लगेगा कि देखिए हम वाकई में ये बात जो हम इतनी देर से याद करते थे अब हम अक्सर भूलते नहीं हैं और ये हमें चीज़ याद रहती है। और ये बहुत से ऐसे उलमा हैं जो आगे डिग्रियां लेते हैं और जो डॉक्टर्स बनते हैं, या कोई ऐसे मुअल्लमा हैं जो जाती हैं जो हम अपने आप जो है वहाँ पर जाते हैं, तो यकीनन हमें यकीन है कि वो भी जो आलिम जो बन रहे हैं तो वो यकीनन इन चीज़ों से फ़ायदा उठाते होंगे और ताकि वो जो पढ़ाई में उनको वो जो होता है वो याद रहे और भूल ना पाए। जी जी बिल्कुल। और इसको अभी हम कंटिन्यू भी रखेंगे। कॉलर आगे हैं और कॉलर से मैं गुजारिश करूंगा कि वही कॉलर जिनको फ़िलहाल अभी तक नहीं मौका मिला था, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन है जी। सैयद मैं बर्मिंघम में रहता हूँ, मैं आपका मेंबर हूँ पार्लियामेंट जी। माशाल्लाह। मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी कि आप मुझे आलम जो हमारे आलम है अब्बासी साहब या आदिल साहब का नंबर दे सकते हैं। मैंने उनसे आप ऐसा करें कि वो जो 72 के सामने नंबर लिखा है डोनेशन हॉटलाइन वाला, तो वहां से गुजर के ही हम उलमा कराम के या कोई भी इंक्वायरी है डोनेशन हॉटलाइन से गुजर के आपको वो सारी इंक्वायरी मिल सकती है, सारे जो नंबर है मिल सकते हैं। तो MCR में भी शायद कि कॉलर अगर होल्ड पे हैं तो उनसे बात कर लेते हैं। उनकी कॉल ड्रॉप हुई तो मैं नाज़रीन से गुजारिश करूंगा 11 बजे तक हमारे वही कॉलर्स या वही व्यूवर्स आएँ जिनको महज एक बार या एक से भी कम बार नहीं मौका मिल पाया पूरा मुहर्रम में और सफ़र की इन अयाम में भी, और हाफ़ज़े से मुतालिक बात हो रही थी। बहन अगर कंप्लीट करना ये तो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और बेहतरीन, मैं तो ये कहूँगी बेहतरीन हाफ़ज़ा अगर आपने अच्छा करना है तो आप मोहब्बत अहले बैत से इतनी लगाव रखें तो आपका खुद ही हाफ़ज़ा बहुत बेहतरीन हो जाएगा। ये एक बेहतरीन नुस्खा है। और दुरूद पढ़ें उन पर और उनसे मोहब्बत करें, आप यकीन जाने आपका जो हाफ़ज़े में बहुत मतलब एक हाँ ये भी एक और देखें बहुत मुअम्मर उलमा कराम जिनमें जनाब अल्लामा तालिब जोहरी साहब के देखें जी जी कि माशाल्लाह इस उम्र में भी बेहतरीन हाफ़ज़ा है। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। या अली मदद। वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद। हमारे साथ कौन कहाँ से? मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ, गुलाम मुस्तफ़ा। जी गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बहुत मेहरबानी सर। मैं वो लोहे के बारे में सुनना चाहता हूँ। शाम वालों बेटियां हैं नबी की, हमें न सताओ, ये जरा आप मुझे सुना सकते हैं? शाम करना ठीक है, हम हमारे भाई सुन रहे हैं तो अगर यही वर्डिंग वाला हुआ वरना इससे मिलता जुलता कोई और नोहा हम आपकी खिदमत पेश करेंगे भाई। तो फरूक साहब को बोल देना जी 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 वो दुआ आखिर में जरूर पढ़ दें। जज़ाकल्लाह सही है, बहुत मेहरबानी गुलाम मुस्तफ़ा साहब सऊदी अरब से। अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, थोड़ा टीवी से हट जाए और जो भी बात आप कहना चाहें बिस्मिल्लाह। चले, बहुत मसला रहेगा इस तरह। अगर आप जो भी कॉल करना चाहते हैं टीवी से हट जाए तो ताकि आराम से आप बात कर पाएँ। हमारा ये तकरीबन 10-15 मिनट का टाइम है उन लोगों के लिए कि जिनकी शिकायत काफ़ी रही इस पूरे महीने में कि उनका मौका नहीं मिला, और उन लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं, रेगुलर कॉलर्स हैं, और उन्होंने दूसरों के लिए कुछ देर के लिए अपने आप को रोके रखा है। वरना जो रेगुलर कॉलर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, इस प्रोग्राम की जान है, और माशाल्लाह उनकी जो मालूमात दी हुई हैं उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, और जो लोगों तक मैसेज जाता है मजमूई तौर पे वो बेहतरीन अंदाज में जाता है। बात हम कर रहे हैं वफ़ादारी हज़रत अब्बास अलमदार और बीबी फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ादारी की, और कुछ वाक़यात हज़रत बीबी फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा के कल के कुछ शेयर किए गए कि किस अंदाज से आपने खिदमत की अहले बैत अलैहिस्सलाम की, और क्या आरज़ू की जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बुलवाया, और वो उस वक्त आखिरी वक्त था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इस वक्त जो जारी हयात चल रही थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने क्या चीज़ें मांगी। दोबारा दोहराऊँगा, एक कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चले, कोई बात नहीं, कॉल ड्रॉप हुई, इधर से दोबारा चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम सलाम फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ग्लासगो से आजम राना अर्ज कर रहा हूँ। जी आजम राना साहब, तो आपने जो हजरत अब्बास और बीबी फैजा के बारे में जो एनालॉजी आपने बयान फरमाई है, बड़ी खूबसूरत, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। जज़ाकल्लाह जी, दुआ दीजिएगा, बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बड़ी मेहरबानी। और दूसरा, ये बीबी ने जो हाफजे के लिए बताया था, जी जी, सूरत 113 उसकी वो दोबारा को बयान दोबारा बता देंगे कि वो सूरत कौन सी है? जरूर बताते हैं सर, जरूर बताते हैं। राना साहब आप फोन रखिए, टीवी से सुनिए ताकि इजीली आप सुन पाए। बहुत शुक्रिया ग्लासगो से आजम राना साहब। जी भाई, ये सूरत निसा है, सूरत निसा, इसकी आयत नंबर 113 है, और 121 मरतबा इसे आपने पढ़ के पानी पे जो है दम करके फिर वो रोज़ाना इसे पीना है। सूरत निसा है, इसकी आयत नंबर 113 है, और आपने 121 मरतबा 121 टाइम्स जो है वो आपने पढ़ना है, और 113 जो है वो सूरत निसा की ये आयत नंबर है। आयत नंबर 113 है जी, सूरत नंबर 113 नहीं है। नहीं, सूरत निसा की 113वीं आयत जी, 13वीं आयत है, और 121 मरतबा पानी पे रोज़ाना जो आपने दम करके पीना है। जी बेशक। तो बात हो रही है उस वाक़े की जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाक बीबी फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा को बुलवाया और 3 ख्वाहिशात पूछी कि जो भी आप मांगना चाहें तो मांगे। तो पाक बीबी ने क्या मांगा, इस पर उन्होंने कि एक तो वो करबला तक ज़िंदा रहना चाहती है, यानी 61 हिजरी तक ज़िंदा रहना चाहती है। उसके बाद जब उनको ज़िंदगी हो तो फिर वो मदीना पाक से करबला जाने वालों में वो शामिल हों। और तीसरी ख्वाहिश उनकी ये थी कि जब तक वो ज़िंदा रहें वो अहले बैत अलैहिस्सलाम की खिदमत करती रहें। तो तीनों ख्वाहिशात ऐसी थी कि उन्होंने मरते दम तक उनकी वो पूरी भी हुई और बेहतरीन अंदाज में उन्होंने। बिल्कुल, आप ये देखिए कि एक तो उन्होंने अब किस तरह से अपने वो घराने से, जिस घराने से थी वो जो एक बादशाह घराना था, उसको उन्होंने किस तरह से दौलत को उन्होंने ठुकरा दिया, और ठुकरा के किस तरह से वो इनकी खिदमत में आई। और आप ये देखिए कि वो रहने के साथ साथ वो तमाम तकलीफ़ें उठा रही थी। हो सकता था कि उनके कुछ चेंज आ जाता उनकी सोच में, लेकिन कोई तब्दीली नहीं है उनकी सोच में, और उन्हें मज़ीद ये चाहा कि मुझे ये और ज़्यादा अज़ियतें जो उनको होने वाली हैं साथ साथ मैं भी करूं, ताकि मेरी उम्र लंबी होगी तो मैं उनका साथ दे सकूंगी। तो ये सारी उनकी एक नियतें थी, सोच थी, जो उनको इस मर्तबे पे परवरदिगार आलम ने खुद इमाम ने किस तरह से उनका जो है नमाज जनाजा अता किया था। आप ये जब अहले बैत अलैहिस्सलाम के घर में एक शख्सियत का ऐसा मर्तबा हो तो उस शख्सियत का अल्लाह के यहाँ बहुत ऊंचा मर्तबा होता है। यकीनन एक वाक़या और पढ़ा कि माह रमज़ानुल मुबारक चल रहा था और सबसे पहले मौला अली अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ्तारी की दावत दी कि आप हमारे यहाँ रोज़ा इफ्तार कीजिए। फिर अगले दिन पाक बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी, आप दूसरे दिन भी तशरीफ़ लेके गए, फिर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने दावत दी, तीसरे दिन भी तशरीफ़ लेके गए, चौथे दिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी आपको रोज़ा खोलने की दावत दी, तो हजूर मगरिब के बाद वहाँ पर तशरीफ़ लेके गए। तो उसके बाद फिर पाक बीबी फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दे दी। तो जैसे जैसे इफ़्तार का वक्त करीब आने लगा तो उनको ये फ़िक्र होने लगी कि मेरे पास इफ़्तारी के लिए कुछ सामान नहीं है, चीज़ नहीं है, मैं कोई ख़रीद नहीं सकती। तो उस वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरफ से वो पाक अल्लाह ताला की तरफ से पाक पकवान जो है मायदा आसमानी वो नाजिल हुआ, और फिर आसमानी जो एक सिलसिला था खुराक का वो नाजिल हुआ, और सब ने फिर रोज़ा इफ्तार किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और फिर अल्लाह ताला की भी इसमें रज़ा देखे कि किस अंदाज से वो खाना आसमान से आया और इफ्तारी का यकीनन। देखिए उस घराने की आप ही देखिए जो एक खादमा थी, तो उन परवरदिगार आलम में उनका भी कितना बड़ा रुतबा है। तो ये सारी बातें वही कि हम कहते हैं उन जैसे बन जा, उन जैसे, वही वाली बात है कि हम उनके खादिम के भी खादिम अगर बन जाएं तो ये हमारी एक खुश नसीबी होगी यकीनन। तो ये सारी बातें हैं जो हमें एक देखना है कि क्या वफ़ा है, किस तरह से कुर्बानियाँ दी जाती हैं मोहब्बत में। जैसे कि बात हो रही थी, मैं आपसे ये कह रही थी कि मोहब्बत अहले बैत जो है वो आपको दुनिया से बेनियाज होना है, अपने आप को वो सारी चीज़ें, वो सारी मोहब्बतें अपने आप अपनी ख़त्म करनी है। ज़ाहिर जब आप अपने नफ्स को मार देंगे तो फिर आप उनकी मोहब्बत को हासिल कर सकेंगे। कहते हैं ना ज़ुबानी कलामी आपने बोल दिया और बस ठीक है, हम तो भाई बहुत दुनियादार तारीख कर लेते हैं वक्ती तौर पे, माह रमज़ान में सब कुछ कर लिया, रोज़े रख लिए, ये मुहर्रम सफ़र है, ये बहुत ऐसा ट्रेनिंग सेशन है कि अगले 10 महीने हम, ये साल का आगाज़ है ना, इस्लामी साल का आगाज़ है, महीना 2 महीने सवा 2 महीने हमने इबादत इस अंदाज़ से की है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी छाप अगर हमने ये सही मानों में की है तो इसकी छाप ऐसा हो नहीं सकता कि अगर सच्ची नीयत से ये इबादत भी की हो और साल के अगले 10 महीने हम फिर इससे फ़ायदा ना उठा पाए। तो ये छाप रहनी चाहिए कि ये बंदा जो है मुहर्रम सफ़र गुजार के अब रबीउल अव्वल में दाखिल हुआ है, फिर उसके बाद जो दीगर महीने इसमें सारी ज़िंदगी जो चल रही है इसकी, इसने ये ट्रेनिंग में हिस्सा लिया है। अब फ़ौजियों को देखते हैं ना कि हाँ जी फ़ौज में कोई भर्ती हुआ है तो उसकी 2-3 महीने पहले ट्रेनिंग होती है, तो हेयर कट चेंज हो गई, उसके गाँव महल्ले वाले भी देखते हैं हाँ भाई ये ट्रेनिंग करके आया है, तो थोड़ी सी चेंज, उसकी फुर्तीलियाँ, उसकी थोड़ी सी डिसिप्लिन में आना ही लोगों को थोड़ा सा वो एक उससे मुमताज़ हैसियत कर जाता है कि अगर आम जिंदगी में वो 10 बजे उठता था तो फौज में जाके वो सुबह 4 बजे उठता यकीनन। और आपकी तब्दीली लोग महसूस करते हैं, तो यहाँ मोमिन की तब्दीली महसूस होनी चाहिए यकीनन। आप छोटे से घर में भी कोई ऐसा रूटीन चेंज करते हैं तो घर वाले भी कहते हैं क्या ताज्जुब की बात है, अक्सर ऐसी तंजिया में बोलते हैं आज सूरज कहाँ से निकल रहा है, हाँ तो मतलब बड़ी तब्दीलियाँ हो गई। तो ये तब्दीली अगर इंसान में आती है तो यकीनन आप देखें कि वो लोग महसूस करते हैं कि भाई वाकई में ये शख्स पहले ऐसा था, अब इसके रवैये में जो चेंज आ गया, इसका इखलाक बहुत अच्छा हो गया है, अब ये मदद करने लगा। मतलब ऐसी बहुत सी जो चीज़ें हैं जो अमाल नेक सोहला अमाल है, तो उसमें अगर हमारी तब्दीली आएगी तो यकीनन हम एक लगेंगे कि किसी के चाहने वाले हैं। ख़ुद को भी कहते हैं ना ज़हनी सुकून भी होता है, दिली सुकून भी मिलता है आपको कि आपने कोई अच्छा काम किया किसी के लिए। तो ये भी सारी बातें हैं जो ज़हनी सुकून की बात हुई है। और वो हम तो वो डिप्रेशन है, बहुत मुख्तलिफ ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं कि हमारा वो सुकून या एक जिसे कहते थे ना बरकत उठ गई है घर से, जैसे कहते हैं बरकत उठ गई, कारोबार में बरकत नहीं है, माल जो है इतनी तनख्वाहें हैं, सब कुछ है, सब आसाइशें हैं। इस वक्त कौन चक्की पीस के आटा जो है वो बना रहा है, इस वक्त तो वो नहीं है, मामला ही नहीं है। कौन जो है वो पैदल हज पे जा रहा है या कौन ज़ियारतों पे पैदल जा रहा है। इस वक्त जो आशिकाने अहले बैत अलैहिस्सलाम है वो जा रहे हैं चेलम के लिए, लेकिन वो पूरा साल पैदल सफ़र नहीं करते, लेकिन बहुत सी आसाइशें छोड़ छाड़ के वो अब इस वक्त वो काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर हम अपने आप को उस अंदाज से ढंग में अपना ना पाएँ कि जिस तरह हुक्म है, तो फिर बहुत पीछे हमें। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम हमारे साथ कौन कहाँ से? बात करना चाहता हूँ जी। जी आप लाइव आ चुके हैं, बात कर रहे हैं, अपना नाम बता दें। जी मैं कर रहा हूँ ये 1-2। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सैयद गुलाम अब्बास से बोल रहा हूँ जी। जी सैयद गुलाम अब्बास। वालेकुम अस्सलाम, सैयद गुलाम अब्बास से बोल रहा हूँ जी। कहाँ से, किस शहर से बोल रहे हैं भाई? जी जी मैं कर रहा हूँ जी। मेरे वालिद साहब ने चंद अशार लिखे, एक शेर जो आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, चलें बिस्मिल्लाह। जी बोलूं? जी जी जरूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम अजमईन। जी
جی میں لاہور سے بول رہا ہوں جی، پاکستان۔ ماشاءاللہ جی جی بسم اللہ پیش کریں سر۔ جی احد و وحد تو فقط ذات معلّہ جی، احد و وحد تو فقط ذات معلّہ، توصیف الوحدت سے ہوا نور تجلی، احد میں ملی میم ہوئی تجلی متجلی، اور کملی میں چھپے 5 ہے جو لولا کلمہ ہے، اور حضرت عباس میرے راہ نما ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے والد صاحب کا لکھا ہوا شعر ہے جی، ماشاءاللہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا جی۔ جزاک اللہ غلام عباس صاحب، بہت شکریہ، اور اللہ اگر آپ کے والد اس وقت دنیا میں نہیں ہیں ان کے درجات بلند فرمائے۔ الہی آمین۔ لاہور سے آپ نے کال کی، اور چلیں ہمارے اس کا مقصد پورا ہوا کہ ان لوگوں کو بھی موقع مل رہا ہے کہ جن کو پورے مہینے موقع نہیں ملا، تو ایسے ویورز کے لیے ابھی بھی 5-6 منٹ ہیں ہمارے بریک پر جانے سے پہلے، وہ آ سکتے ہیں اس قسم کے حاضری لگوانا چاہیں، یا ہدایت ٹی وی کی جو بھی آپ نشریات دیکھ رہے ہیں اس سے آپ نے کتنا فائدہ اٹھایا وہ بتانا چاہیں۔ تو اگلے کالر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی شاہ صاحب اگر بریک کے بعد اگر آپ آئیں، کیونکہ ریگولر کالرز کے لیے ہم نے تھوڑا سا یہ چینج کیا ہوا ہے، شاید آپ نے دیکھا نہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ بہت معذرت کہ اندر سے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، آپ بات کریں، لائیو آ چکے ہیں۔ السلام علیکم، آپ کی ٹی وی کی آواز مجھے آ رہی ہے۔ السلام علیکم، چلیں شاید کچھ مسئلہ ہے جی، ذرا جلدی جلدی بولیے بھائی، ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام۔ ہیلو جی جی بات کریں، آپ لائیو آ چکے ہیں، بالکل بات کریں آپ۔ جی بات کریں۔ تو بہت مسئلہ ہوگا، جیسے ہی آپ کو فون پر میری آواز سنائی دے تو آپ بات کریں، ٹی وی کی طرف دھیان نہ دیں۔ اور ایک بار پھر معذرت شاہ صاحب کہ میں ان لوگوں کو اس وقت لے رہا ہوں 11 بجے تک کے جن کی کبھی کال نہیں ملی تھی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم توفتاً یا علی مدد بابا جی، امیر حسین اور حقے در بطول۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر، بہت مہربانی۔ قبلہ خیریت سے ہیں جی، آپ کی دعائیں ہیں، آپ کی دعائیں۔ مولا حسین آپ کی زندگی دراز کرے۔ ہماری باجی بہن بیٹھی ہیں مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی جو بہن ہے شہزادی فاطمہ الزہرا، ان کی بہن جو ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی نالین کے سائے کے نیچے رہیں۔ یہ میری جو بیٹیاں ہیں سرکار علی اکبر اور سرکار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، اور ان کو کچھ ہدیہ تحفہ پیش کرتے ہیں۔ جو گفتگو ہوئی تھی بابا کی اور بیٹے کی کربلا کے میدان میں، یہ میری بیٹی بیٹھی ہیں، ان سے گفتگو جی ضرور ضرور نوحہ پڑھنا چاہیں گے، لیکن نوحہ میں نے ان کو کہا کہ مختصر سا پڑھنا ہے، اس لیے اور لوگ بھی مومنین بیٹھے ہوتے ہیں جو سرکار کو پرسہ دینے کے لیے۔ حقیقت ہے، حقیقت ہے، بہت شکریہ جی، دیجئے بیٹیوں کو دیجئے۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم توفتاً یا علی مدد۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، مولا علی مدد، مولا علی مدد۔ آنٹی کربلا کے میدان میں علی اکبر سرکار علی اکبر علیہ السلام نے جو گفتگو کی تھی اپنے بابا سے، وہ کہتے ہیں بابا انسان اگر 200 سال تک زندہ رہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا موت۔ ہم دو اشعار پیش کریں گے بسم اللہ، آپ کی خدمت میں۔ بسم اللہ۔ صلوات پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج مجمعین۔ زندگی موت دا جو جانا میرا صابر بابا فکر نہ کر، میں سینے سان جلے داں اے دین خدا دا بچ ہوئے، اے زندگی موت دا جو جانا میرا صابر بابا فکر نہ کر، میں سینے سانگ جلے گاں اے دین خدا دا بچ ہوئے، جو کو بیڑ پیاری ہے میں سغرا میں کو پیاری ہے، میں کلا بھیڑ کو چھوڑایا، یہ کو بیڑ پیاری ہے صبح میں کو پیاری ہے، میں کلا بھیڑ کو چھوڑایا، اولاد
دا دکھ تک دیکھنے پہ اولاد دا دکھ تک دیکھنے پہ میں کچھ دکھ دورا دے مار مکر زیر دی پارت دیندا ہے دین خدا دا بچ کوے ہے زندگی موت دا دوجانا میرا صابر بابا فکر نہ کر میں تین کاند جلیندا ہے دین خدا دا بچ کو. جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ماشاءاللہ. جیتے رہو بیٹیوں. بہت شکریہ محترم بھائی, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ بھی پروگرام میں شامل ہوئے. اور ناظرین جو آج کا سوال ہے وہ بھی نوٹ کر لیں, آپ کی اسکرین پر ہے. حضرت اون و محمد علیہ السلام کے والد گرامی کا آپ نے نام بتانا ہے. اور جو آج کا ہمارا ٹاپک چل رہا ہے وفاداری حضرت عباس اور بی بی فضا سلام اللہ علیہا, اس پر واپس آ کر بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد.